Teachers and dear audience, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Hamidan wa Musalliyan wa Muslima. First of all, let's recite the holy durood upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please listen carefully what I am going to speak. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the food gets halal for devil when a person does not recite Bismillah. When a person takes food, he should recite Bismillah. But if he forgets to recite Bismillah, he should recite Bismillah awwalahu wa akhirahu. There is in another narration Bismillah fi awwali wa akhiri. There is in Holy Hadith that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you take food by gathering and recite Bismillah because there is barakat for you in that. There is in another narration, some people asked politely, O Messenger of Allah, we take food, then also feel hungry. You said, perhaps you take food only. They said, yes, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, take by gathering and recite Bismillah, it will be barakat. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं कि आप जवाब देंगे जी इंशाल्लाह सर। वो इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Who is the Prime Minister of India in present time? Mr. Narendra Damodar Das is the Prime Minister of India in President 2024. Who is the Chief Minister of UP? Mr. Yogi Adityanath is the Chief Minister of UP. Who is the President of India? Mrs. Draupadi Murmu is the President of India. Who is the Vice President of India? Who is the Vice President of India? Mr. Jagdeep Dhankhar is the Vice President of India. How many teachers are there in your madrasa? There are 3 teachers in my madrasa. How many limited children are there in your madrasa? There are almost 15 children in my madrasa. What is your madrasa name? Darul Uloom Mawlid Misbah Ulum. Where do you get education? I get education below. Where do you live? I live in Mumbai. Assalamu alaikum. मिंबर रसूल पर फरोज फरमाए किराम और शायख बुजुर्ग और दोस्तों नौजवान साथियों पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिज़्क़े खुदा खाया क्या फरमाने हम डाला क्या, रिज़्क़े खुदा खाया क्या फरमाने हम डाला क्या, शुक्र करम कर से सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। और दिल लोह में खोना तुझे शब सुबह सोना तुझे, दिल लोह में खोना तुझे शब सुबह सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रात मोहतरम मैं आप हज़रात को कुछ नसीहताना बातें पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसम दुरूद व सलाम का हादिया निछावर करिए। पढ़े बावन से बलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम खुतबे मसरूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तौबतुन नसूहा ये काबिल गौर जुमला है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तौबतुन नसूहा का मतलब ये है कि जब इंसान एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए। जब एक मरतबा तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह की तरफ रुजू ना करे। जब एक मरतबा तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह की तरफ कदम ना उठाए। जिस तरह धन से दूध निकलने के बाद धन में नहीं जाता। हज़रात मोहतरम याद रखिए, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया की हर शय फानी है, दुनिया में कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। ये जो ऊंचे ऊंचे मकान आप देख रहे हो ना, ये सब फना हो जाएंगे। ये फल के बोझ पहाड़ खत्म हो जाएंगे। ये ऊंचे ऊंचे तना और दर्द का वजूद मिट जाएगा। धन और दौलत फना हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े नामोर बादशाह का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर जंग जो इंसानों का वजूद मिट जाएगा। धन और दौलत फना हो जाएगी। गोया कि दुनिया में कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अगर कोई शैतान रहने वाली है तो वो खौफ खुदा। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो अमाल। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो अपने गुनाहों से तौबा करके उस पर कायम रहना। हज़रात मोहतरम याद रखिए, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होना, एक दिन मौत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से फरमाएगा कि मैंने तुम्हें उम्र दी, हत्ता कि तुम्हें बेबेहा नेमतें अता की, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? तुमने अपनी उम्र को इबादत में सर्फ की हो या दुनिया में कामों में सर्फ की हो? तो अपने आंखों से कलाम पाक की हो, तो अपने हाथ से मजलूमों की मदद की हो, तो अपने पैर से चल चल मस्जिद की तरफ गए हो, तो अपने हाथों से मजलूमों की मदद की है। इसी तरह से हर एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। मुसलमानों, अगर आपने अपने हाथों से चोरी की है तो आपके हाथ आप ही के खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर आपने अपने हाथों से चोरी की है तो आपके हाथ आप ही के खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझसे बुरी चीज चुराई है। अगर आपने अपने आंखों से बुरी चीज देखी है तो आपके हाथ आप ही के खिलाफ गवाही देंगे। इसी तरह से आपके तमाम एहसान आपके ही के खिलाफ गवाही देंगे। आप क्या जवाब देंगे? हज़रात मोहतरम, इसलिए यहाँ पर लाजिम है कि अपने गुनाहों से तौबा करें और उस पर कायम रहें, ताकि हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ गवाही ना दें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद होगा जब सूरज पश्चिम से शुरू होगा। अगर हम किसी गुनाह में सरजद हो जाए, किसी गुनाह की दलदल फंस जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करनी चाहिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, तो यकीनन हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अज़ीम है कि बंदा गुनाह करता है, फिर किसी गुनाह की दलदल में फंस जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, तो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अगर मेरा बंदा गुनाह ना करे, मुझसे तौबा की तलब ना करे, तो मैं उस कौम को मिटा दूंगा, उस कौम के बदले दूसरी कौम पैदा करूंगा जो गुनाह करे और फिर मुझसे तौबा की तलब करे। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आप काम हज़रात को एक वाक़या सुनाऊं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने खिलाफत में, यानी जब उनका दौर था, जब उनकी दौर खिलाफत थी, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने खिलाफत में गाने वाला फासिक लोगों को गाना सुनाया करता था। लोग उसके गाने को सुनकर बहुत खुश होते, बहुत नजराने देते थे। उसका चर्चा सारे शहर में हो गया, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उस फासिक से बहुत नाराज थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और उस बीमारी के सबब वो बहुत कमजोर हो गया। उसकी सुरीली आवाज़ भी खत्म हो गई, कोई पूछने वाला ना रहा। आखिरकार खाते से निकाल हो गया। मदीने कब्रिस्तान में जाकर एक पुराने कब्र पर बैठ कर रो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करने लगा कि या अल्लाह, ये तेरा गुनहगार बंदा, तुझे भूल कर लोगों को गाना सुनाया
सुनाया करता था। आज मेरा कोई परेशान नहीं है, मेरी गिरिया वसारी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे मौला मेरे गुनाहों का बख्श दे। मेरे पास तो नहीं है, मगर मेरे पास है अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला। अपने बदले के सदक़े तवस्सुल से मेरे गुनाहों को बख्श दे। इतना कहना था कि दरिया रहमत जोश में आया, उसी वक्त उसकी दुआ कबूल हो गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्हाम हुआ कि उमर मदीना कब्रिस्तान में हमारा कोई 3 दिन से भूखा बैठा है, जल्दी जाओ उसकी मदद कर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 अशरफ लेकर मदीना कब्रिस्तान पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, अलबत्ता एक शख्स एक पुराने कब्र पर मुंह छिपाए हुए बैठा था। ये सोच देखते ही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर ये वली कैसे हो सकता है, आखिर इसने कौन सी काम की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अपना वली बना लिया है और उसकी मदद के लिए मुझे इसके पास भेजा है। इतना सोचना था कि आपको छींक आ गई और उस छींक की आवाज सुनकर उस शख्स ने सर उठाया तो क्या देखता है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला खड़े हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उस शख्स से पूछ पड़े कि आखिर तूने कौन सी काम की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अपना वली बना लिया है और तेरी मदद के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये हज़ार अशरफ के थे और बदर की हालत पूरी कर ये सुनते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अज़ीम याद करके एक दर भरी चीख मारी और कलमे तैयबा पढ़ा और जैसे ही कलमे तैयबा पढ़ा उसकी रूह परवाज़ कर गई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ये सारा मंजर देखकर रोने लगे और ऐलान किया कि मदीने में जितने लोग सब अल्लाह के वली के जनाजे में शामिल हो जाएं और सब लोग अल्लाह के वली के जनाजे में शामिल होकर नमाज जनाजा अदा करें। तो सब लोग जमा होकर नमाज जनाजा अदा किया, फिर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दफन किया। हज़रात मोहतरम आपने देखा जब एक हाजिर फासिक सिद्दीक़ दिल से सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और उसे अपने मुक़र्रब बंदों में दाखिल कर लिया, उसे अपना वली बना दिया। हज़रात मोहतरम लेकिन आज हम हज़ारों गुनाह करने के बावजूद नादिम नहीं होते, शर्मसार नहीं होते, अपने दिल में गुनाह करने का एहसास करते ही नहीं। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर आज हम गुनाह करने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करें और तौबा का कायम रहें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे मुकम्मल तौर पर खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे बोलने में और हमारे सुनने में हम सुनने में तौफीक़ अता फरमाए और मेरे बोलने में और हमारे ज़रात सुनने में कोई भी नफ़्स से मैंने माना अता कोई भी गलती हुई है तो माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। Now I am going to deliver introduction about myself, so please listen carefully. My name is Ali Hussain. My father name is Tanveer Ahmed. My mother name is Khalil Nisa. There are 8 members in my family. We are 3 brothers and 3 sisters. There are 3 teachers in my madrasa. First name is Hazrat Hafiz Ahmad Muslan Ali. Second name is Hazrat Maulana Muhammad Hussain Tanveeri. Third name is Hazrat Bari Fazlur Rahman Ali. May Allah bless them. I am in Hifz class. My madrasa name is Darul Uloom and Sunnat Misbah wal Balagh. There is in one book in my madrasa. There are almost 15 admitted boys in my madrasa. I live in Yanama. Please listen carefully. My name is Muhammad Samir. My father name is Muhammad Saifullah. My mother name is Razia Khatun. There are 6 members in my family. We are 1 brother and 3 sisters. I am in the class. I live in Sipoli Post, Karda, Siddharth Nagar. There are 3 teachers in my madrasa. First name is Hazrat Hafiz Ahmad Hussain Ali. Second name is Hazrat Maulana Muhammad Hussain Tanveeri. Third name is Hazrat Qari Fazlur Rahman Ali. May Allah bless them. My madrasa name is Darul Uloom and Sunnat wal Balagh. There is one cook in my madrasa.
There are almost 15 admitted boys in my madrasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं आप लोगों के सामने चंद चीजें पेश करने जा रहा हूँ। आप तमाम हज़रात गौर से सुने और अमल करने की कोशिश करें। चुनांचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने में 3 बार सांस लेते थे और एक दूसरी रिवायत में कि फरमाते थे इस तरह पीने से ज्यादा सराबी और सेहत के लिए मुफीद और खुशगवार भी है। दूसरी हदीस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। तीसरी हदीस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक साथ से पानी ना पियो, एक साथ में पानी ना पियो और जब पियो तो 2 या 3 साथ में पानी पियो। पीने के बाद पीने से पहले बिस्मिल्लाह कर लो और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। चौथी हदीस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने और पानी में पीने में थूकने से मना फरमाया। लिहाजा हम सबको नबी के फरमान पर अमल करना चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मदद शरीफ पढ़े। अल्लाह अल्लाह नहमदु रसूलुल्लाह अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप लोगों के सामने चंद हदीसें पेश करने जा रहा हूँ। आप तमाम हज़रात गौर से सुनें और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करें। चुनांचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान के लिए वह खाना हलाल हो जाता है। दूसरी हदीस में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अगर वह बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये कहे बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिर और एक दूसरी रिवायत है बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिर। तीसरी हदीस में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी। कुछ लोग बोलते हैं या रसूल अल्लाह हम खाना खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता। इरशाद फरमाया शायद तुम अलग-अलग खाते होगे, यहां फरमाया इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी। चौथी हदीस में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स खाने के बाद बर्तन चाट लेगा वह बर्तन के लिए इस्तिगफार करेगा। पांचवी हदीस में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उंगलियां और बर्तन चाटने की उंगलियां और फरमाया कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि खाने की खुशी में बरकत है। लिहाजा हमको अपने नबी के फरमान पर अमल करना चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहिए। व मा अलैना इल्ला वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों के सामने चंद हदीसें पेश करने जा रहा हूँ। तो हम हज़रात गौर से सुनो और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करें। चुनांचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रोज़ा रात के वक्त सूरह वाक़िआ पढ़ेगा वह पाक से हमेशा महफूज रहेगा। हदीस नंबर 2 में है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने औरतों को सूरह वाक़िआ सिखा दो क्योंकि सूरह गनी है यानी मुतालिक करने वाली सूरह है। हदीस नंबर 3 हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लाज तो बनाई है। सुनते हैं कि महा
महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और मचला की रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला की रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। है बेकसों के आका, है बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जश्न यौम आजादी, जश्न यौम आजादी, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो। टूटे हुए दिल ही, टूटे हुए दिल ही खास की कमाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतला में इश्क क्या था वल्लाह रज़ा, वल्लाह मतला में इश्क क्या था वल्लाह रज़ा, वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है। लाज तो बराई है।